Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Welcome to our online teaching once again. Because of the third wave of COVID-19, we have to now rely on online lectures. Now, this is based on communication skills. If you remember that in the previous lecture, I told you that your course objective is basically it revolves around the practical needs of students based on the communication skills. So I thought that I should tell you briefly that what are communication skills. So here the sequence of my talk will be that I'm going to tell you what is the meaning of skill and the origin and meaning of communication. And the third and the last point that I'm going to discuss over here is types or mediums of communication. See, let's have a look at the word skill. Now, what is a skill? Skill is actually the ability to do something that comes from training, experience, or practice. Now, these three terms that I have underlined, they are important from the point of view of how the skill is acquired. Skill is actually the expertise of doing something. किसी काम की महारत होना is called a skill. All right. So in Urdu we call it maharat. So skills can be very easy or from simple things we can see. जैसे सुई में धागा डालना होता है हर बंदा धागा नहीं डाल सकता कहने को तो बड़ा आसान काम लगता है but when somebody is going to try it it's not that easy. Now this is also a skill. सुई में धागा डालना और धागे को गिरा लगाना अपने आप में ये एक स्किल की एग्जाम्पल है जो हर बंदा ज़रूरी नहीं है उसे आए तो फॉर दैट पर्पस वन नीड्स प्रैक्टिस राइट. और स्किल्स मुश्किल भी होती हैं जिस तरह से कि कोई रोबोट बनाना और कंपोजिंग अ म्यूज़िक और घर बनाना जैसे लोग घर बनाते हैं ये जो सारे आपको पता है कि आर्किटेक्ट्स भी होते हैं नक्शे बनाते हैं फिर उसके बाद कारपेंटर ये सब स्किल्ड पीपल होते हैं बिकॉज दे हैव रीच्ड दिस प्लेस थ्रू ट्रेनिंग through experience and through practice. So it means that practice is the key word in skill. So it is mastered through practice. तो इसका मतलब है किसी भी काम पर महारत होना उस पर कमांड होना उसका मास्टर होने के लिए प्रैक्टिस इज इम्पॉर्टेंट राइट. इस जिस तरह से आप लोग अगर लिखते नहीं हैं अगर आप लोग पढ़ते नहीं हैं तो आप इसका मतलब है कि अच्छा आंसर डेवलप नहीं कर सकते तो इसका मतलब आपके पास वो स्किल नहीं है जो उस बंदे के पास होगी जो बार बार पढ़ता है लिखता है प्रैक्टिस करता है एंड दैट पर्सन इज गोइंग टू बी मोर एफिशिएंट मोर प्रोफिशिएंट इन रीडिंग एज वेल एज writing. See, so skill has all the things which are related with experience, talent, efficiency, etc. So skill is a very vast thing. It includes so many you can say abilities or the things that are part of it. Right. Now we look at the second most important word over here, and that is communication. Now, first we are going to see the origin, that it has been derived from the Latin word. देखिए बहुत सारे words जैसे हम पहले भी पढ़ चुके हैं parts of speech था या जो भी था, most of them have come from Latin. So Latin was always considered to be the language of scholars. यानी जो ज़रा scholars थे या जो बड़े बड़े इस तरह की कोई इल्मी किस्म की चीज़ें थी वो लैटिन से आया करती थी. ठीक है, लैटिन वर्ड. सो इट हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड कम्युनीज which means to make common. Now this is basically its you can say its origin and of course its literal meaning. But let's get to its proper definition, that it is the exchange of thoughts, messages, information by way of speech, writing or signals. ये कम्युनिकेशन उसे कहते हैं कि जिसमें आप अपने ख़यालात या मैसेजेस या कोई मालूमात को दूसरे तक पहुंचाते हैं और किस तरह पहुंचाते हैं बोलकर लिखकर या किसी किस्म का कोई इशारा या सिग्नल देकर. सो इट मीन्स दैट दिस इज़ द प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ द वर्ड कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन का मतलब ये है कि यू कन्वे योर मैसेज either in the written form or in the spoken form or in the form of any signal to the other side. अब other side में there can be one person यानी एक बंदा भी हो सकता है जिसके साथ आप बातचीत करते हैं
या फिर इट कैन बी विद मैनी पीपल। सो इसका मतलब है कम्युनिकेशन जो है या तो वो एक बंदे के साथ भी हो सकती है, यानी वन टू वन कम्युनिकेशन, जस्ट लाइक इन द फर्स्ट इमेज where the two people can talk or two people can write to each other, जैसे लेटर्स हैं या इस तरह से, और इट कैन बी विद मैनी पीपल ऑल्सो। ठीक है ना, कि अब ये सारे तो दो दो तीन, यहाँ पर 3 लोग बात कर रहे हैं, यहाँ पर 2 लोग बात कर रहे हैं इधर, तो अगर ये आपस में भी एक बंदा खड़ा होकर तीसरे सारे लोगों से बात करे तो इट इज ऑल्सो कम्युनिकेशन। ओके, the most important thing that we should know over here is that every communication is between a sender and a receiver. There has to be a sender जो मैसेज देता है, और एक रिसीवर होता है जो उसको सुनता है या पढ़ता है और फिर रिस्पॉन्ड भी करता है। फीडबैक मीन्स दैट देयर कम्स द रिस्पॉन्स फ्रॉम द अदर साइड कि उसको वो बात समझ आई या नहीं आई, विच मीन्स that understanding of the message is very important in communication. communication उस वक्त तक incomplete है जब तक कि अगली साइड को आपकी बात समझ नहीं आती और उस पर वो किसी किस्म का कोई रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। रिस्पॉन्स का ज़रूरी नहीं है कि अल्फाज के साथ ही किया जाए, कोई जेस्चर्स भी दे सकता है, कोई फेशियल एक्सप्रेशन भी हो सकते हैं। जैसे आपसे किसी ने कोई सवाल पूछा या आपसे कोई कहा कि आज आपने हमारे साथ बाहर जाना है खाने पे, अब ज़रूरी नहीं कि आप मुंह से कहें कि नहीं, हो सकता है कि आप अपना सर हिला दें नहीं में, तो अगले को समझ आ जाएगी कि आप जो हैं। सो समझ आना, विच इज़ ये जो अंडरलाइन मैंने पोर्शन किया हुआ है कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन अकर्स ओनली, शर्त क्या है, इफ द रिसीवर अंडरस्टैंड्स द एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन और आइडिया दैट द सेंडर इंटेंड्स टू ट्रांसमिट। अब अगर आपसे एग्जाम के अंदर जैसे आप से सवाल होते हैं, अब देखिए उसमें भी कम्युनिकेशन चलती है। वो क्वेश्चन है जो एग्जामिनर ने सेट किया है, अब आपने उसका आंसर लिखना है। वो रिटन कम्युनिकेशन में आप ये देखें कि अगर आप उसमें गलत स्पेलिंग लिखते हैं, उसमें गलत स्ट्रक्चर बनाते हैं लैंग्वेज का, उसमें गलतियां होती हैं, तो आपकी थॉट अगले तक जो एक तो कंप्लीट होकर नहीं जाएगी, दूसरी बात यह कि वो इंप्रेशन बहुत बुरा लेगा आपके बारे में। सी, सो इट मीन्स कि वो कम्युनिकेशन ये जो स्टूडेंट्स भी कर रहे हैं इन द रिटन फॉर्म या क्लासरूम में कम्युनिकेशन चलती है विद द टीचर, ये सब कुछ भी इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन एज फार एज कम्युनिकेशन इज कंसर्न्ड। सो कम्युनिकेशन बहुत बड़ा वर्ड है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं। राइट, अच्छा जी, ये कुछ इमेजेस हैं आपके सामने। अब आप देखें कि ये डिफरेंट तरह की कम्युनिकेशन चल रही है। ठीक है, ये डिफरेंट तरह की, इसमें से आप देखें तो दिस इज़ ओरल कम्युनिकेशन, यानी कि ये ज़बानी जो स्पीच के थ्रू चल रही है, स्पोकन कम्युनिकेशन यानी ये है। इसमें देखें तो ये भी स्पोकन है, सम प्रेजेंटर इज टॉकिंग टू द पीपल, कोई ऑडियंस के साथ बातचीत हो रही है। अच्छा, ये आप देखें तो दिस पर्सन इज रीडिंग समथिंग, कोई ईमेल पढ़ रहा है कुछ इस तरह से, तो ये रिटन फॉर्म की कम्युनिकेशन है। यहाँ पर ये बच्ची जो है शी इज़ रीडिंग अ बुक, तो किताब पढ़ते हुए ज़ाहिर है हमारे माइंड में बहुत सारे, हम राइटर का पॉइंट ऑफ व्यू अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, तो दिस इज़ अगेन द रिटन कम्युनिकेशन। अब रिटन का ये भी दो, अभी हो सकता है कोई लेटर लिख रहा है, कोई जो है अपनी बात समझाने के लिए कोई पॉइंट्स बना रहा है। सी, तो यहाँ पर आप देखें तो ये जो हैं 4 रिटन के आ जाते हैं, ये 2 जो है ये स्पोकन के हैं। अच्छा, अब ये क्या है, ये मैंने एक इश्तहार लगाया, दैट इज़ एडवर्टिजमेंट विच आई हैव ब्रॉट फॉर यू। देखिए, ये जो जितने भी इश्तहार होते हैं ना, दे ऑल्सो कम्युनिकेट समथिंग। सबसे पहले तो वो ये आपसे ये कम्युनिकेट करते हैं कि हमारी ब्रांड को, ज़ाहिर है वो तो बेच रहे हैं, तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हमारी ब्रांड को ख़रीदो। तो जब ये इश्तहार बनते हैं तो इनका राइटिंग स्टाइल, इनका राइटिंग साइज़, इनमें जो जिस तरह से ये इमेजेस को यूज़ करते हैं, ये सब आपसे कोई बात कर रहा होता है, कोई मैसेज कन्वे कर रहा होता है। अब फॉर एग्जांपल इफ़ आई एम गोइंग टू डाइसेक्ट इट, अगर मैं इसको थोड़ा सा एनालाइज करूं, तो आप देखिए तो सबसे पहले तो जो इन्होंने इतनी बड़ी सारी बॉटल बनाई है, ये क्यों बनाई है कि ताकि जो देखे उसकी तवज्जो फ़ौरन से इसकी तरफ जाए, क्योंकि बेसिक चीज़ तो ये है कि दे आर सेलिंग अ ड्रिंक, अ सॉफ्ट ड्रिंक, ठीक है, जिसका नाम है जी 7 अप। ओके, ये फ़ौरन हमारी अटेंशन कैच करता है बिकॉज इसके कलर्स ब्राइट हैं।
जो उसके ऊपर लोग बैठे हुए हैं उनके कपड़ों के कलर ब्राइट नहीं हैं। क्यों? कि हमारी तवज्जो बॉटल पे जानी चाहिए। पहले बॉटल पे तवज्जो गई, देन आफ्टर दैट आप देखेंगे कि हम गौर करते हैं कि ये क्या कर रहे हैं, ये बॉटल पे बैठता कौन है। हाँ, लेकिन अब हमें एकदम पता चल रहा है कि ये कोई ऐसी बॉटल है जिस पे जब इससे रिलेटेड होते हैं तो ये आपको खुश करती है, बिकॉज एवरीबडी इज हैप्पी। देखें ये फेशियल एक्सप्रेशंस देखें सारों के, दे ऑल आर हैप्पी। इसका मतलब है कि जब आप इस बॉटल से जुड़ेंगे तो ये आपको खुश करेगी। दूसरी बात ये देखें, तीसरी बात कि हु आर दीज पीपल। जब हम गौर करते हैं तो पता चलता है ये कोई फैमिली है, तो इसका मतलब है कि ये एक फैमिली ड्रिंक है। देखिए, और फिर ये ड्रिंक आपको खुश कर रही है। फिर अब आप देखें ये बॉटल ऊपर की तरफ, यानी कि जैसे जहाज का एक वो जब वो गियर अप करके ऊपर जाता है, यानी कि जब उसने टेक ऑफ करना होता है तो उसकी ये पोजीशन होती है। तो इट मीन्स कि ये सारे जो लोग इसको पियेंगे फैमिली वाले, तो वो सारे दे विल बी फ्रेश और हाई हो जाएंगे, यानी कि दे विल स्टार्ट थिंकिंग बिग, और वो बड़े, उनका दिमाग जो है वो खुल जाएगा। और वो ऊपर का मतलब यही हुआ ना कि दिमाग खुल जाएगा, दे विल बी फ्रेश। अब ये सारी बातें इन्होंने लिखी नहीं है, लेकिन हम एज द पीपल हु लुक एट इट, हम जो ऑन लुकर्स हैं, हम ये इंटरप्रेट करते हैं एंड वी ट्राई टू अंडरस्टैंड। ठीक है, तो इसलिए इश्तहारों के पीछे बड़ी साइकोलॉजी होती है। इसको जो ट्रेन लोग इनको करते हैं उनमें उनको बताया जाता है कि राइटिंग साइज कैसे रखेंगे, कौन सा इमेज किस तरह से, किस चीज़ पे फोकस करना है, क्योंकि ये सारी बातें कुछ ना कुछ कम्युनिकेट कर रही होती है ना टू दी ऑन लुकर्स और द पीपल हु हैव अ लुक एट दीज एडवर्टिजमेंट। राइट, अच्छा, इट टेक्स मी टू द मीडियम्स और द टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। अगर आप देखें कि कम्युनिकेशन की कितनी किस्में होती हैं, तो वी लुक एट नंबर 1, वर्बल। वर्बल का क्या मतलब हुआ? यूजिंग वर्ड्स आइदर इन स्पीकिंग और राइटिंग। जहां अल्फाज का इस्तेमाल किया जाएगा उसे हम कहेंगे वर्बल। सो मीडियम्स ऑफ कम्युनिकेशन, नंबर 1 इट इज़ वर्बल, जिसके अंदर फर्दर 2 टाइप्स मैंने लिखी हैं, ए एंड बी। ए में ओरल है। ओरल का मतलब क्या हुआ कि जिसमें अल्फाज जो हैं वो ज़बान से बोले जाते हैं। ठीक है, सो स्पीकिंग एंड लिसनिंग, ये उसकी 2 तरह की आगे इनमें इन्वॉल्वमेंट होती है। जो लोग यानी कि बोल रहे हैं या सुन रहे हैं वो ओरल कम्युनिकेशन के अंदर है, क्योंकि हम लिसनिंग का मतलब ये होता है कि आप अगले को सुनते हैं ताकि कोई रिस्पॉन्स आप दें उसके बाद। राइट, यही फ़र्क होता है हेयरिंग और लिसनिंग में। हेयरिंग ज़रूरी नहीं होता कि आप हर वर्ड पे तवज्जो दें, बट इन लिसनिंग यू आर सपोज टू बी गिविंग अटेंशन टू एवरी वर्ड दैट दी स्पीकर सेज। अच्छा, दूसरी तरह की वर्बल कम्युनिकेशन रिटन फॉर्म में होती है, जो मैंने आपको एग्जांपल स्टूडेंट वाली भी दी और अभी जिस तरह से। सो इसमें अल्फाज को ज़बान की बजाय कलम के ज़रिए या लिखने के आप उसमें लेकर आते हैं। तो एनीथिंग विच इज़ इन द रिटन फॉर्म और वो कुछ मैसेज कन्वे कर रही है टू द रीडर, तो उसको हम कहते हैं रिटन कम्युनिकेशन। सो ओरल कम्युनिकेशन के पार्टनर्स कौन होते हैं? सेंडर आपका और रिसीवर। ये देखें, ये सेंडर है, ये रिसीवर है। रिटन में, राइटिंग में जो पढ़ रहा है वो रिसीवर है और जो लिख रहा है वो सेंडर है। ओके, अच्छा, नंबर 2 टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, दैट इज नॉन वर्बल। नॉन का मतलब ये है कि नो। सो नॉन वर्बल मीन्स जिसमें अल्फाज का इस्तेमाल नहीं होता है बल्कि कोई सिग्नल्स दिए जाते हैं। अब ये सिग्नल्स कैसे देते हैं? थ्रू फेशियल एक्सप्रेशन। जैसे एक बंदा अगर आपसे नहीं भी कह रहा, यानी कमरे में दरवाज़ा खोल के आता है और इसके चेहरे को देख के आप समझ जाते हैं कि वो गुस्से में आया है, क्या वो खुशी की कोई बात शेयर करना चाह रहा है, क्या कोई उसको गम है, तो ये आपके उसको फेशियल एक्सप्रेशन जो उसकी बॉडी लैंग्वेज से आपको पता चल जाएगा। जैसे जेस्चर्स हैं, बॉडी लैंग्वेज है। प्रॉक्सिमिटी का मतलब होता है कितना दूर या कितना करीब, आप फासला कितना मेंटेन रखते हैं लोगों से। सो दैट इज क्लोजनेस और इन अ वे द डिस्टेंस रादर बिटवीन द पीपल। सो उससे भी पता चल जाता है कि आप लोगों से दूर रहना चाहते हैं, अपना तन्हाई मांगना चाहते हैं, या लोगों में मिक्सअप होना चाहते हैं। ये भी एक मैसेज कन्वे करता है लोगों को आपके बारे में। अच्छा जी, पर्सनल अपीयरेंस। पर्सनल अपीयरेंस में भी आपके जैसे कपड़े कैसे, आप अपने बाल कैसे बनाते हैं, आप अपने आप को कैसा रखते हैं, इट ऑल्सो कन्वेज समथिंग टू दी अदर साइड। आपके बोलने से पहले लोग आपको देखते हैं एंड देन दे हैव एन इम्प्रेशन। बोलना तो बहुत बाद में आता है, सबसे पहले तो आप द वे यू वॉक, द वे यू ड्रेस अप, द वे यू यूज़ योर बॉडी, फेशियल एक्सप्रेशंस आपके क्या हैं,
ये सारी चीज़ें जो हैं ये नॉन वर्बल में आती हैं। और साइलेंस, ऑफ कोर्स साइलेंस भी आपका एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक कम्युनिकेशन होती है। आई मीन कि कुछ लोग कुछ ना कह के भी बहुत कुछ कह जाते हैं। सो दिस इज़ हाउ इट इज़। अच्छा, ये जो वर्बल के अंदर मैं थोड़ी एग्जांपल्स आपको देना चाहती थी कि फेस टू फेस, टेलीफोन, रेडियो, टेलीविज़न, अब ये देखिए ये ओरल कम्युनिकेशन है। जबकि लेटर्स, ईमेल्स, बुक्स, मैगजीन्स एटसेट्रा दिस इज रिटन फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। अच्छा, थर्ड फॉर्म भी एक होती है, थर्ड टाइप भी होती है, एंड दैट इज कॉल्ड विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन, जैसे विजुअल का मतलब होता है देखना, अब विजुअलाइजेशन का मतलब क्या हुआ कि अगर हम देखते हैं ना ग्राफ्स, चार्ट्स, मैप्स, लोगोज, अब इनमें अल्फाज कम होते हैं, इनमें ज़्यादा होता है कि इनमें देखें कुछ कलर्स दिए जाते हैं, कुछ शेप्स बनाई जाती हैं, जैसे मैप्स हैं, चार्ट्स हैं, लोगोज हैं, पोस्टर्स हैं, बिलबोर्ड्स, दे ऑल्सो कन्वे अ मैसेज। ठीक है, तो विजुअलाइजेशन इज द थर्ड फॉर्म ऑफ और द थर्ड टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। सो देर आर मेनली 1, 2, 3 types, and within verbal there are further 2 types. इसको दोबारा गौर से देख लें। राइट अच्छा, अब ये मैं आपके सामने एक डॉक्टर एल्बर्ट मेहराबियन, ही वाज एन इरानियन, इनिशियली ही वाज बोर्न इन ईरान एंड देन लेटर ऑन ही केम टू अमेरिका। ही इज़ अ साइकोलॉजिस्ट। वो कहते हैं कि पर्सनल कम्युनिकेशन के अंदर कितना ज़्यादा हिस्सा बॉडी लैंग्वेज या नॉन वर्बल का होता है वो आप देख लें। वो कहते हैं कि ओनली 7% हम बोलते हैं, यानी पूरी जो हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं किसी के साथ, उसमें ओनली 7% इज द रोल ऑफ वर्ड्स, बाकी सब नॉन वर्बल है। यानी इवन टोन ऑफ वॉइस भी नॉन वर्बल है, यानी आपकी आवाज़ कितनी ऊंची है या आप कैसे बोल रहे हैं, धीमा बोलते हैं, ऊंचा बोलते हैं, सख्त लहजे में बोलते हैं, नरम लहजे में बोलते हैं, ये सब इट्स पार्ट ऑफ ये सेकेंड एंड ये जी मतलब 38% एंड 55% दोनों मिला के नॉन वर्बल ही समझो हो जाता है। ठीक है, सेकंड वाले को हम पैरालिंग्विस्टिक भी कहते हैं, यानी कि जो जो आपके लैंग्वेज यानी अल्फाज का साथ देता है, उसकी मदद करता है, वो आपकी टोन ऑफ वॉइस होती है। ठीक है, अल्फाज किसको थोड़ा यू कैन से आपका जो ये है ना कि आप क्या बोलते हैं और ये कैसे बोलते हैं। ठीक है, और बॉडी लैंग्वेज में आप देखते हैं कि आपकी बॉडी किस तरह से उसका साथ दे रही है कि नहीं जो आप बोल रहे हैं। ठीक है, सो कहने का मकसद ये है कि कितना बड़ा हिस्सा, अगर 55% के साथ आप 38 को भी डाल दें तो ये है जी विदाउट वर्ड्स, और ये है अल्फाज। सिर्फ ये ब्लू कलर का देखें कितना छोटा सा हिस्सा, इट इज़ वर्बल, इसमें वर्ड्स हैं, बाकी इन दो में वर्ड्स नहीं हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि वी नीड टू बी वेरी केयरफुल अबाउट आर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, कि कोई हम गलत मैसेज तो अपनी बॉडी लैंग्वेज के थ्रू या अपनी अपेयरेंस के थ्रू या अपनी वॉइस के थ्रू तो नहीं भेज रहे। सी, तो इसीलिए जब इंटरव्यूज़ की ट्रेनिंग करवाई जाती है, व्हेन दे आर बीइंग प्रिपेयर्ड द पीपल, दे आर टोल्ड बाय दी साइकोलॉजिस्ट कि आपने अपनी बॉडी लैंग्वेज को कैसे रखना है, कैसे अंदर आना है, कैसे बैठना है, अपने हाथ कैसे रखने हैं, अपने आपको ड्रेसअप कैसे करना है, आपने जवाब देने के लिए आपने फिर अपनी टोन कैसे रखनी है आवाज़ की। ऑल दिस इज़ पार्ट ऑफ नॉन वर्बल। ओके, राइट। अच्छा जी, बिफोर होम टास्क मैं फिर से जाना चाहूँगी और the session which I have now taken, sequence of talk. Okay, अब आप देखिए, now we know what is the meaning of skill, origin and meaning of communication, and what are those mediums or types of communication that we have done. Right, now we are going to go to the home task. अब आपने homework करना है। homework क्या है आपका? आपके दो homework है, ठीक है, और that you have to do within this week. पहला क्या है कि टेक एनी इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ स्टोरी और नॉवल और ऐसे कोई भी चीज़ जो आपको पसंद हो रिटन फॉर्म में, ये आपके रिटन कम्युनिकेशन है। ठीक है, कि उसमें कोई चीज़ उठाएं आप एंड रिकॉर्ड इट इन योर वॉइस। अब फिर आप उसको ज़रा आप कोई छोटा हिस्सा ही उठाइएगा, क्योंकि आप रिकॉर्डिंग 2 से 3 मिनट की करें इन अ प्रॉपर वे, यानी आप रिकॉर्ड करें उसमें प्रॉपर तरीके से अपनी आवाज़ का उतार चढ़ाव, किस तरह से राइटर बात करना चाहता है वो आपके थ्रू होना चाहिए। फिर आपने क्या करना है
कि लिसन टू योर सेल्फ एंड पॉइंट आउट द इश्यूज और मिस्टेक्स यू वांट टू चेंज. अपने को खुद सुने एंड देन ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आपने क्या गलती की है, अगले को कैसे, यानी अब आपने लिसनर बन जाना है. पहले आप स्पीकर, पहले आप रीडर थे, फिर आप स्पीकर बन गए, फिर आप लिसनर बन गए. अब अपने आप को लिसनर बन के सुन के देखें कि उसमें क्या इश्यूज हैं. अब आपने यहाँ तक तो प्रैक्टिकल वर्क किया. उसके बाद आपने क्या किया? नंबर 2, राइट अ पैराग्राफ ऑफ 100 to 150 words about that whole experience in the register. अब ये जो सारा कुछ आपने किया, ये सारा पॉइंट नंबर, बुलेट नंबर 1, ये आपने जो कुछ किया इसको लिखेंगे. आप पहले लिखेंगे कि आई चोज पैराग्राफ, I chose the book, yeah, the essay or the novel titled this. First, it was about this one. Then I recorded it in my voice, and when I listened to my voice, I came to know that I had made several pronunciation issues, or you can say my voice did not have proper rise and fall, or I was too loud, or I was too लो, आई वॉज स्लो, आई वॉज फास्ट. कुछ भी आपको लगा कि इशू है उसमें, वो आपने लिखना है, क्योंकि मैंने ये चेक करना है, जो रिटन फॉर्म है इसको मैंने चेक करना है. ये दिस पार्ट ऑफ योर आई एम गोइंग टू चेक. ठीक है, अभी मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट भी कर देती हूँ कि दिस पार्ट इज इम्पॉर्टेंट. दिस आई विल चेक फॉर चेकिंग फॉर teacher. For teacher. It's a bit difficult to write this way, but I have to just make you understand so that you should not miss this point. तो ये तो आपका फील्ड एक्सपीरियंस है, एंड दिस इज फॉर द टीचर और फॉर मी. ओके, एक तो आपने ये काम किया. दूसरा काम आपने क्या करना है, ये ज़रा 2 इश्तहारों को देखिए. दीज आर 2 advertisements of 2 companies cell phones, the cell phones of 2 companies. ये जो है आईफोन का है और ये आप देखें तो सैमसंग का है. ठीक है, पहले आप इनको गौर से देखेंगे, फिर आपने क्या करना है. होम टास्क इज हैव अ लुक एट दीज 2 advertisements of mobile phone. Which one will you buy and why? यानी अगर आपसे कहा जाए कि इन 2 मोबाइल फोन्स में से कौन से लेंगे बेस्ड ऑन द एडवर्टिजमेंट, इन दोनों का इश्तिहार देख के, तो आप कौन सा वाला लेंगे और क्यों लेंगे? ना बिकॉज दे आर ट्राइंग टू कन्वे अ मैसेज टू यू ना, तो विच वन यू आर गोइंग टू बाय. तो इसमें आपने अगेन एक शॉर्ट पैराग्राफ लिख के बताइए कि कौन सा वाला लेंगे और क्यों लेंगे, किसके इश्तिहार में क्या बात थी, या किसने आपको कन्विंस किया. बेसिकली ये कन्विंस करने की कोशिश करते हैं ना कि ये वाला ले लो, तो ये वाला ले लो. हाँ, तो आप कैसे लेंगे, क्यों लेंगे उसको. ठीक है, सो दिस इज व्हाट यू हैव टू डू. सो 2 होम टास्क्स बेसिकली, और ये ओवर द वीकेंड यू हैव टू फिनिश दीज सो दैट व्हेन द नेक्स्ट क्लास स्टार्ट्स तो हम इसको देख लें. All right, thank you for watching and listening, and the coming up lecture will be 7 C's of effective communication. ये भी related है communication के साथ, लेकिन there are some things which are very important for effective communication, जिनको हम कहते हैं 7 C's. So the next is going to be based on that. Till then, Allah Hafiz.